Today we are going to talk about presidents. हम लोग ने व्हाट इज प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था कि लाइक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, फिर इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ओथ और अफर्मेशन कैसे होता है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उनके पावर्स. इसमें से एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर जुडिशरी पावर्स, देन फिर आप power, military powers, emergency power, diplomatic powers, financial powers, and today talk about each and everything. So let's start. So first we will start from executive power. Okay. So what is executive power? Let me change the. So executive power means policy makers. Executive powers वो policy makers होती है. अभी हम लोग पढ़ेंगे point number 1. तो इसमें executive actions the government of India are formally taken in his name. Like all actions are taken on the name of president. Second, rule specifying the documents made and executed in his name shall be authenticated. Like president make rules using his name. Like president जी खुद ये रूल बनाते कि उनका जो नाम है वो कहाँ किस जगह यूज करना चाहिए. फिर बाद में आते पॉइंट नंबर 3. He can make rule for more convenient transaction of business of union government and for allocation of said business among minister. Like president also make rules for transaction of business of union government. जो मतलब जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो भी गवर्नमेंट में रिगार्डिंग यूनियन वो सब रूल्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट जी ही करते थे. एंड लेंस पॉइंट नंबर 4. He appoints the prime minister and the other minister they hold office during his pleasure. ये तो आपको समझ में आया. लाइक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, फिर वो अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं जो उनके जो होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग हिज टाइम. ओके. फिर लेट्स कम टू 5. नो, पॉइंट नंबर 6 ना. नो 5. He appoints the Attorney General of India and determine his remuneration. The Attorney General hold during the pleasure of office. President सेम जनरल को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. अभी हु इज अटॉर्नी जनरल? अभी अटॉर्नी जनरल होता कौन है? तो अटॉर्नी इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी. ये इंडियन हाईएस्ट पोस्ट होता है. कौन सा? जनरल. लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 6. अभी प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट? President appoints the Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner and other commissioners, Chairman and Member of Union Public Service Commission, Governor of Chairman and members of Finance Commissions, and so on. President इन सबको करते हैं. Okay. Point. He can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposal for the legislation for the Prime Minister. Like President जी कभी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि कंट्री में क्या चल रहा है, यूनियन अफेयर्स क्या चल रहा है. He require the prime minister to submit for consideration of councils of ministers any matter in which a decision has been taken by a minister but which has not and can require of course for consideration of CM a decision has been taken by minister but not been considered by council. Okay. He can to investigate into condition of SC ST. प्रेसिडेंट कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए. ही अपॉइंट इंटरस्टेट काउंसिल, सेंट्रल स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन. ही एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय हिम. वो इन्हें भी अपॉइंट करते हैं. फिर बाद में area the scheduled area and has power with respect to administrations of scheduled areas and tribal areas. Okay. ये पावर्स अभी हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स इसमें हो गया. टू लेजिस्लेटिव पावर्स. अभी लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या आता है? व्हाट आर लेजिस्लेटिव पावर? पार्लियामेंट. पीपल रिप्रेजेंट्स. हमने जो पढ़ा था ना फर्स्ट इसमें, सबसे फर्स्ट इसमें तो कंसेप्ट इन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर लेजिस्लेटिव पावर, तो उसमें पढ़ा था मेक लॉ इन पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट इज एन इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड एंजॉय द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स. सो फर्स्ट वन इसमें आता है ही कैन समवन पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा. इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ, आपको पीडीएफ. It's an important. He can summon or prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. He can also summon the joint sitting of both the House of Parliament, which is presided over the Speaker of
address the parliament at after each election as the first session of each year. प्रेसिडेंट जी जो है वो जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर में जो फर्स्ट बोलते हैं ना वेलकम स्पीच देते हैं, he can send message that the represent whether to respect to a bill pending in a parliament or otherwise. लाइक जो प्रेसिडेंट जी है वो पार्लियामेंट को ये मैसेज सेंड कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है या नहीं, इसके लिए वो उसे पूछ सकते हैं, ये राइट उनके पास थ्रू आता है. एंड फोर, any member of Lok Sabha to preside over its proceeding when the power of both the speaker and the deputy speaker fall vacant. Any member of Rajya Sabha to preside over its chairman when the office of both the chairman and deputy chairman fall vacant. इसमें सिंपल फॉर्म में यही लिखा गया है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट लोकसभा इफ द ऑफिस इज वैकेंट. मतलब अगर कोई भी जो ऑफिस लोकसभा इसमें लिखा है, देखिए आपको मार्क है, proceeding when the office of both the speaker of deputy speaker vacant. Similarly, he can also appoint any member of Rajya Sabha to preside and chairman, and जो भी ऑफिस वैकेंट रहेगा प्रेसिडेंट जो जी है वो उसे वहां अपॉइंट कर सकते हैं. From amongst having special knowledge or practicing experience in literature, special arts and social service. अभी जो प्रेसिडेंट जी है वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, लाइक फ्रॉम साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस. ओके, ही नॉमिनेट टू members to the Lok Sabha from the Anglo Indian community. अभी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जी उसमें से 2 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, बट इट कैंसल इन 2020. अभी जो एंग्लो इंडिया आता है वो अभी कैंसिल होगा, इससे 2 मेंबर्स फ्रॉम आर नॉट नॉमिनेटेड इन लोकसभा. ओके, ही डिसाइड्स ऑन qualification of members of parliament in constitutional election commission. तो अब इसमें ओके, his prior recommendation or permission is need to introduce certain bills parliament, for example bill involving expenditure for India or states or creation of new state. लाइक प्रेसिडेंट जी का जो है मतलब रिगार्डिंग बिल उनका प्रायर रिकमेंडेशन एंड इवन प्रायर रिकमेंडेशन टाइप्स ऑफ बिल होता है, काम होता है. फिर इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स एन इम्पोर्टेंट, when a bill is sent to president after it has been passed by the parliament, he can give his access to bill, he can withhold his access to bill or return the bill if he consent. However, if the bill is passed again by parliament with or without amendment, the president had to give his access to bill. अभी इसमें से बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट, मतलब जो भी कोई बिल होता है जो पास होता है पार्लियामेंट से वो फर्स्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड आफ्टर इट हैज बीन होता है वो प्रेसिडेंट के पास है. तो प्रेसिडेंट हैव 3 टर्म्स. ही कैन गिव हिज असिस्ट टू बिल, मतलब एक तो वो हाँ कह सकते हैं, ही कैन विथहोल्ड हिज असिस्ट टू बिल मतलब कह सकते हैं, या ही अगर प्रेसिडेंट ने बिल रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन पार्लियामेंट में और लेकिन वो पार्लियामेंट से अगेन पास हुआ, प्रेसिडेंट हैव टू गिव असिस्ट टू बिल. बट इफ इट इज नॉट, मतलब अगर वही सेम मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडर नहीं कर सकते. हम ये वीडियो में आगे पढ़ेंगे. ओके, a bill is passed by state legislature is reserved by governor for consideration of president. The president can give his assent to a bill, withhold his assent to a bill, direct the governor to return the bill for reconsideration action of state legislature. It should be noted here that in non-obligatory for the president to give his assent even if the again passed by the state legislature to consideration. ठीक है, इसमें क्या होता है अभी सेम, मतलब हम लोग ने पिछले में क्या पढ़ा है कि प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं ही कैन रिटर्न द बिल if it is again passed by the parliament, president had to give assist, मतलब उन्हें हाँ कहना पड़ता है. लेकिन इसमें कैसे होता है, इन केस ऑफ स्टेट में कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर आर्टिकल 201. अभी हम लोग ये यहाँ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 201. in case of states comes under article 201 and it is reserved by governor for consideration of president. तो इसमें फर्स्ट क्या आता है, he can give assist, मतलब अभी कोई बिल हो गया है गवर्नर प्रेसिडेंट के पास जाए तो उनके बीच 3 ऑप्शन है. फर्स्ट वो ही कैन गिव असिस्ट, वो हाँ बोलेंगे.
और डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न, मतलब वो अभी गवर्नर कहेंगे कि आप जो बिल है वो आपके स्टेट लेजिस्लेटर में फिर से भेज दीजिए, हाँ, मगर वो स्टेट लेजिस्लेटर से बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर है, अगर उन्हें वो पास करना है तो वो कर सकते, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते, उनकी ही मर्जी चलेगी। वैसे वहां पार्लियामेंट में क्या होता था, बाद में अगर वो पार्लियामेंट से अगेन पास होगा तो उनको हाँ ही बोलना पड़ता था, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटर नो, मर्जी, अगर उनको ना बोलना है तो वो ना बोल सकते हैं। ओके, ordinance when the parliament is not in session. This ordinance must be approved by the parliament within 6 months from its to withdraw any time. या तो वही सिंपल गई, मतलब जो प्रेसिडेंट जी है वो यहाँ ऑर्डिनेंस है वो प्रोमोगलेट कर सकते, या कब कर सकते हैं, जब वो पार्लियामेंट होता में नहीं रहता, एंड वो ही कैन इवन ऑल्सो विड्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, मतलब जब उनको चाहे वो ऑर्डिनेंस कर सकते। प्रेसिडेंट जी ये वो रिपोर्ट, he lays the report on Controller and Auditor General, UPSC, Finance Commission and other before the Parliament. Okay, इसमें ये लोग प्रेसिडेंट जी रिपोर्ट बनाते हैं। देन उसके बाद ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली। सब क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, ऑल ऑफ दिस territories, Diu and Daman and Ladakh. In the case of Pondicherry, president can legislated by making only when the assembly is suspended or dissolved. Okay, तो ये आपके पूरे के पूरे legislative powers. Now we will talk about financial powers of president, कि मैंने यहाँ मार्क भी किया। तो फाइनेंशियल पावर्स, द फाइनेंशियल पावर्स इन द फंक्शन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कहेंगे मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद इज प्रायर रेकमेंडेशन। जो मनी बिल होता है, लाइक मैंने पहले बोला कि अगर वो मनी बिल होगा तो इसके लिए मतलब रिकंसिडरेशन के लिए नहीं बेच सकते, तो वही है, क्योंकि वो क्यों नहीं बेच सकते रिकंसिडरेशन की, जो मनी बिल वो रेकमेंड वही वही वो पहले he caused to laid before the parliament and the annual financial budget, that is the okay. Demand for a grant can be made except on his recommendation. Except his recommendation means no demand for a grant can made without his recommendation. बाद में आता है एडवांस आउट ऑफ द कंट्री टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आपातकालीन या भारत के पास अगर कर पैसे कम होगा तो तो एक फंड होता है उसे बोलते हैं अनफोर्सिन एक्सपेंडेंसी फंडिंग। तो ये जो फंड में से प्रेसिडेंट जी उस टाइम आ सकते, लाइक हम लोग पहले होते ना हमारे पास पैसे नहीं तो हमें दादाजी सबसे प्रेसिडेंट आपको पैसा, ही फाइनेंस कमीशन आफ्टर फरवरी, इसमें क्या लिखा, ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमिटी 5 years टू रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के बाद। ना हम आ जाएंगे जुडिशियल पावर्स के पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुडिशियल पावर। तो प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट जी अपने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ और एक्ट, however the advice tendered by the supreme court is non binding। मतलब प्रेसिडेंट जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, ये कब किसके अंदर, अंडर आर्टिकल अंदर 43, ये जो आया ना, मतलब इट्स कम्स अंडर आर्टिकल 143 एडवाइस सुप्रीम, लेकिन जो एडवाइस जो बाइंड कोर्ट से प्रेसिडेंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, he can grant pardon, review, respite, remission or punishment or send repent। जी क्या है वो क्या कर सकते हैं, एक तो पार्डन मतलब माफी दे सकते हैं, फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फिर रेपराइव, रेस्पेक्ट, रिमिशन और पनिशमेंट कर। इसमें अभी 3 आते हैं, कौन सा, वेर पनिशमेंट और सेंटेंस इज कोर्ट मार्शल के, इसमें पनिशमेंट इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया हो वो, और ऑफ डेथ मतलब अगर किसी को फांसी दे तो उसे रोकने का अधिकार सिर्फ एक पर्सन के पास है, वो मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट। ओके, फिर आता है डिप्लोमेटिक पावर्स। The international treaties and agreement are negotiated and concluded on behalf of president. However, they are subject to the approval of parliament.
He represents India in international forums and affairs and sends the receives diplomats like ambassadors, high commissioner and so on. अभी मैं आपको पॉइंट में कर दूंगा, आपको एक पॉइंट में बताता हूँ. ओके. The international treaties, अभी प्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या होता है? Like international treaties and agreement are negotiated and conducted behalf of his name. ओके. And he represents India in international forums and affairs. प्रेसिडेंट जी है जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स और फॉरम्स होते हैं उसमें भारत को रिप्रेजेंट मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? मिस्टर प्रेसिडेंट जी वो. And he sends receive मतलब he appoints diplomats like ambassadors, high commissioners and so on जो यूपीएससी थ्रू फॉरेन सर्विसेज के फिर वो किसी कंट्रीज में जाके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं कंट्रीज के या फिर डिप्लोमेट्स होते हैं तो उन सबको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रेसिडेंट्स की. ना मिलिट्री. अब मिलिट्री के ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट जी जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ he is the supreme commander of defense forces and he appoints chief of army navy and air force मतलब chief of army के है नेवी एंड एयरफोर्स है उन्हें भी कौन अपॉइंट करते हैं? उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. और जो वॉर डिक्लेयर करना है या वॉर फिर कंक्लूड पीस करना है वो भी मिस्टर प्रेसिडेंट ही करते हैं. लेकिन हाँ उसके लिए क्या करना पड़ता है? कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कर सकते हैं लेकिन उन्हें अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए और वो वी कैन इवन कंक्लूड ही शुड वांट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. अभी नेक्स्ट आता है इमरजेंसी पावर. इमरजेंसी पावर का तो एक अलग टॉपिक है तो ऑफकोर्स हम इसे एक अलग टॉपिक तो उसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स इधर एक बार समझ के लेते हैं. इन एडिशन टू द नॉर्मल पावर मेंशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कंफर्म्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन द प्रेसिडेंट टू डील विद द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. अब इसमें थ्री टाइप्स की इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंस इमरजेंसी. तो नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर आर्टिकल 352. President's rule comes under Article 356 and 365 and financial emergency comes under Article 360. Financial emergency I think इंडिया में 1990 एन चंद्रशेखर के टाइम लगी थी. ये मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था. नेशनल इमरजेंसी मतलब आपकी आपातकालीन सुव्यवस्था और प्रेसिडेंट रूल्स मतलब राइट नाउ यू नो दैट प्रेसिडेंट रूल राइट नाउ इवन देयर इज इन जम्मू एंड कश्मीर. मतलब राष्ट्रपति राजवट. प्रेसिडेंट रूल्स मीन राष्ट्रपति राजवट तो अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है. अभी वहाँ इलेक्शन होने वाले लाइक इन द इवन द इन महाराष्ट्र राइट नाउ जो अपोजिशन पार्टी है वो भी यही कर रही है कि देयर शुड बी एन राष्ट्रपति राजवट प्रेसिडेंट रूल्स इन महाराष्ट्र. सो होप क्या होता है. सो वी हैव कंप्लीटेड आर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. इसमें हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा? तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेट्स पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स. हाँ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो लाइक मेरे वीडियो किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो या किसी को नहीं समझ रहा ईमेल आईडी दे दिया है. प्लीज काइंडली मेल करना मुझे. मैं आपको अपना कांटेक्ट दे दूंगा एंड मैं आपको चाहिए तो पर्सनली भी ये समझा सकता हूँ पर्सनली कॉल पे. ओके. So don't be shy. Even I am a student like you, and I just want one thing. We both should recommend this time. Okay. So have a nice day. Bye bye. Check.